Good morning, students. Today we will discuss chapter chemical reactions and equations. In this, we will discuss types of chemical reaction. There are different types of chemical reactions. First one is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. Fifth is redox reaction. First type of chemical reaction that we are taking, that is combination reaction. नेम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन इट मीन्स टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड and they form a single compound. The reaction in which two or more reactants, two reactants हो सकते हैं, two से more than reactant हो सकते हैं, तो two or more reactants combine and form single product. Called combination reaction. Now we are taking some examples. In reactants there may be elements or compounds. For example, when carbon react with oxygen, it form carbon dioxide. Two elements combined हो रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है? कंपाउंड. दो reactants हैं, सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर. टू रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, इट मींस इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन. इसमें आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो. लेफ्ट साइड 2 हाइड्रोजन, राइट साइड 2. ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 2 है बट राइट साइड 1, सो बैलेंस करने के लिए वी पुट 2 इन फ्रंट ऑफ S2. Now oxygen balance but hydrogen right side 4 है, इसमें भी आपको क्या करनी है? 4 करनी है. Third example, CaO. Its common name is quicklime. This is the चूना यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए, वही चूना है, उसका है फॉर्मूला CaO. Quicklime, it's calcium oxide. When it is dissolved in water, then it form CaOH whole twice, calcium hydroxide. दो रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सो इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नेम अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. तो व्हाइट वॉश के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड चूना है और उसको जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट मीन्स व्हाइट वॉश के लिए सॉल्यूशन बन गया. और इस व्हाइट वॉश के लिए जो सब्सटेंस बना है इसका कॉमन नेम है लाइम वाटर. केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन नेम इज लाइम वाटर. व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर देन इट फॉर्म लाइम वाटर. And when we touch the container in this condition, the container becomes warm, hotted. इस कंडीशन में रिएक्शन होने के बाद में क्या हो रहा है कि कंटेनर का टेम्परेचर हाई हो जाता है. इट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इट इज अ
example of exothermic reaction. Exothermic, it means the reaction in which energy is released. Energy, it may be in the form of heat or light. Called exothermic. If we burn the wood, we are taking example of exothermic reaction. If we are burning of wood contain carbon. When it react with oxygen, it form carbon dioxide plus energy in form of heat. So it is a exothermic reaction. If we are burning methane gas, this is the methane CH4. Then in this case, carbon dioxide, water plus energy is released. So it is also example of exothermic. Even in our body, respiration process, it also considered as the exothermic reaction, because in respiration food breaks down in presence of oxygen. It means C6H12O6, it is a food, glucose, breaks down in presence of oxygens and give out carbon dioxide, water plus energy in the form of ATP. This energy is used by us to perform different metabolic activities. Energy release हो रही है, it means it is also example of exothermic reaction. So first type of chemical reaction, that was the combination reaction that we have discussed. The reaction in which two or more reactants combine and form single product called combination. और उसी combination reaction में हमने कुछ exothermic reactions के भी example discuss किए. One more example of combination reaction, when lime water react with carbon dioxide, it form calcium carbonate. So this is the lime water that is used for whitewashing. When we paint this solution on walls, then it react with carbon dioxide and form calcium carbonate. This is called marble. Its another name is limestone. So this is also example of combination, because two reactants combine and form single product. Now we are taking second type of reaction, that is decomposition reaction. Name से clear है, decomposition. It means the reaction in which single compound breaks down into two or more products. So second type, decomposition reaction, the reaction in which single compound breaks down into two or more reactants. This reaction is opposite reaction of combination. Because in combination, two or more reactants combine and form single. And in decomposition, single compound break down into two or more reactants. For this, we are taking example like calcium hydroxide react with carbon dioxide, it form calcium carbonate. It is a combination reaction because two reactant combined हो रहे हैं और single product form हो रहा है. But on heating, its single compound calcium carbonate breaks down into two parts, calcium hydroxide and CO2. This is a decomposition. So दोनों reactions एक दूसरे का क्या है, opposite. So decomposition reaction is opposite reaction of combination. Now we are taking more examples of decomposition reaction. When we heated
ferrous sulfate. Ferrous sulfate, it means iron sulfate. This iron sulfate is green in color. Its exact formula is FeSO4.7H2. When we heat it, then water molecules are removed, so it forms FeSO4. 7 molecules remove हो गए. Now green color converts into white color. Again you are heating continuously. Then it forms 3 compounds. Fe2O3 plus SO2 sulfur dioxide plus third part is sulfur trioxide. Iron oxide is a brown colored compound. And sulfur dye and sulfur trioxide, these are the brown gases. So green colored FeSO4.7H2, when it heated, first it remove water molecules, then it converts into 3 products. So it means single compound decompose होके 2 or 3 products form कर रहा है. So it is the decomposition reaction. Next example, when lead nitrate, its formula is PbNO3 whole twice. It is a white in color. When it heated, it formed 3 compounds PbO, this is a lead oxide, plus nitrogen dioxide plus oxygen. Nitrogen dioxide, it is a brown color fumes gas, or oxygen, it is a colorless gas. So single compound decompose हो रहा है 2-3 parts में. Lead nitrate था white color का compound. Lead oxide, it is a yellow colored compound. Nitrogen dioxide gas brown color की है और oxygen gas colorless है. देखो इन दोनों एग्जाम्पल्स में वी आर हीटिंग. हीट एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर डिकम्पोजिशन हो रहा है. सो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन. जो हीट की प्रेजेंस में सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है 2-3 पार्ट्स में, दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. नाउ सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. Electrolytic decomposition, its another name is electrolysis. नेम से क्लियर है, decomposition it means single compound break down into 2-3 parts. Electrolytic it means it should be done in presence of electricity. Like thermal में हमने heat दिया था, but electrolytic में we will provide electricity. In this we are taking a container. At the bottom of container we have fixed 2 electrodes, and these electrodes are connected with a battery. These are the carbon या graphite electrodes. Now we put 2 test tubes in inverted position on electrode. 2 test tube को opposite आपने किसके ऊपर रखना है, electrodes के ऊपर. Now इस कंटेनर के अंदर फिल कर देंगे हम वाटर. Water it means H2O. When we connect the electrodes with battery, then electricity will pass through this water solution. After some time we will observe some bubbles at the surface of electrodes. Positive terminal से connected electrode it is called anode,
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर जो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स हैं वो किस वजह से आए? रीजन क्या था? व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर it formed two compounds, that is hydrogen gas and oxygen gas. Hydrogen gas deposit at cathode and oxygen gas deposit at anode. Reason, because hydrogen contain positive, so it attract towards negatively charged electrode cathode, and oxygen gas it contain negative charge, so it attract towards positively charged anode. रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये रिएक्शन होगी 2s2o is equal to 2s2 plus O2. कैसे चेक करना है कि ये दोनों गैसेस के अंदर कौन सी हाइड्रोजन है कौन सी ऑक्सीजन है? जो कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस होगी उसके ऊपर बर्निंग मैस्टिक ले जाने पर पॉप साउंड क्रिएट होगी और बर्निंग मैस्टिक क्या हो जाएगी? ब्लोज आउट, बुझ जाएगी। और एनोड पे जैसे ही आप बर्निंग मैस्टिक लेके जाओगे ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन बर्निंग। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर के थ्रू, एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट हुई है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के कंपैरेटिवली डबल होगी। रीजन क्या है? देखो, जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो गैसेस रिलीज हो रही है, उसमें से एक गैस दैट इज हाइड्रोजन, इट वुड बी डबल ऑफ ऑक्सीजन। रीजन क्या है? बिकॉज रिएक्शन को बैलेंस करने पर क्लियर हो रहा है कि अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 2। रीजन क्या है? रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ये एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस का। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इज फोटोलाइटिक decomposition. Photo it means light. The decomposition reaction, if decomposition reaction occur in presence of light, it is called photolytic decomposition. Silver chloride. When we put some silver chloride in a container, then it forms silver plus chloride. Silver chloride, it is a white colored compound. When we take white color compound silver chloride, after some time it converts into gray colored compound because silver chloride converts into silver and chlorine gas in presence of light. So it is called photolytic decomposition. Same thing AgBr, silver bromide, it is yellow in color. When it is kept in presence of light, it converts into gray colored compound that is silver plus bromine. प्रीवियस टाइम में जो फोटोग्राफी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, उसके अंदर ये कंपाउंड यूज होते थे सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। देखो, 3 टाइप्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तीनों में क्या हो रहा है? कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है either heat, light or electricity. It means heat, light or electricity, these are the forms of energy. So compounds तीनों केसेस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। That type of reaction is called endothermic. So decomposition reaction is endothermic because endothermic reaction, the reaction in which energy is absorbed by the compounds. एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। सो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction, the reaction in which
more reactive metal displaces less reactive metal. More reactive metal less reactive metal को displace करेगा from its salt solution. अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि विच वन इज मोर और लेस रिएक्टिव? इसके लिए जो आप ये सीरीज देख रहे हो, इस सीरीज के अंदर हमने मेटल को अरेंज किया है. फर्स्ट नंबर पे जो मेटल लिखा है इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन डाउन जाने पर उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. सो फर्स्ट नंबर पे है पोटेशियम, सेकेंड नंबर पे सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg इट मीन्स मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड. तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, देन सोडियम, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल के अंदर है Au गोल्ड. सो इस पे बेस हम एग्जांपल्स ले रहे हैं. लाइक हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया. इट इज द ब्लू इन कलर, एक्वस सॉल्यूशन है. सो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. व्हेन वी पुट सम आयरन नेल्स, देन आफ्टर सम टाइम blue color of copper sulfate disappear and there is a green color solution, and there is a green colored solution. Why? Because iron Fe is a more reactive than copper. So iron क्या करेगा, इस पूरे सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्ट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी सीट पे बैठ जाएगा एंड इट फॉर्म FeSO4. और FeSO4 सॉल्यूशन का कलर ग्रीन होता है और कॉपर सेपरेट हो जाएगा. नॉर्मल आयरन ब्लैक कलर का है, उसको आपने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में डाला तो ये FeSO4 में कन्वर्ट हो गया बिकॉज आयरन मोर रिएक्टिव था, कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर is a brown in color. Next example, when we are reacting between zinc and copper sulfate, then zinc and copper, out of both zinc is more reactive, so zinc displace करेगा copper को and form हो जाएगा zinc sulfate plus copper. So copper sulfate का जो blue color है थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा, colorless, because zinc sulfate का कोई color नहीं. और अगर हमने रिएक्शन में अपोजिट कर दिया, कॉपर ले लिया और उसको डिप किया जिंक सल्फेट में, तो रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं होगा बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर. लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा, सो इन दिस केस नो रिएक्शन विल अकर. नाउ वी आर टेकिंग फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. When we react with barium chloride, when we react barium chloride with sodium sulfate, दोनों ही सॉल्यूशन एक्वस कंडीशन में होंगे, then they form barium sulfate plus NaCl. बेरियम ने सोडियम सल्फेट में से सोडियम की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया और कुछ फॉर्म कर लिया बेरियम सल्फेट, और सोडियम ने बेरियम की पोजीशन ले ली, यानी दोनों एटम्स ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया. यानी द रिएक्शन इन विच टू और मोर एटम्स आर एक्सचेंज, द रिएक्शन इन विच एटम्स और आयंस आर एक्सचेंज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी एटम और आयंस एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लें तो वो रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट. रिएक्शन के अंदर ये एक्वस सॉल्यूशन था, ये एक्वस, और प्रोडक्ट के अंदर आपको सोडियम क्लोराइड का तो एक्वस सॉल्यूशन मिला, बट बेरियम सल्फेट सॉलिड की तरह नीचे बॉटम पे सेटल्ड हो गया, इसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट. सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन बिकॉज इस रिएक्शन के अंदर
दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करने पर एक सॉलिड सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो गया, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसी के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम लेड नाइट्रेट दैट इज व्हाइट इन कलर, उसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं, तब भी लेड पोटेशियम का प्लेस ले लेता है और फॉर्म करता है लेड आयोडाइड, और पोटेशियम लेड का स्पेस लेके फॉर्म करता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज redox reaction. Redox reaction in which two process oxidation और reduction occurs simultaneously, यानी दो प्रोसेस साथ साथ होंगे, occurs simultaneously। उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम दिया है redox, RED. This word is taken from reduction, OX. This word is taken from oxidation. So redox reaction एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे। देखो एक कंटेनर के अंदर कॉपर ले लिया, कॉपर का कलर होता है ब्राउन। जब इसको हीटेड किया तो थोड़ी देर में ब्राउन कलर का कॉपर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। रीजन क्या था? बिकॉज कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, सो इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म कर लिया कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, सो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। अगर किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन आकर ऐड हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ही ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, हमने इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास आउट कर दी। हाइड्रोजन गैस के पास आउट होने पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस ने इस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट किया और कॉपर को फ्री कर दिया, और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके कन्वर्ट हो गया वाटर में। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, इट मींस उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, और अगर किसी कंपाउंड में आके ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इट मींस ऐड ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन इट मींस रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। सो रिडॉक्स रिएक्शन टू टाइप की रिएक्शन का ही पार्ट है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, और अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा करें, अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आके ऐड हो रही है तो उसे भी रिडक्शन ही बोलते हैं, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। Now we are taking some terms related with redox reaction. Oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent, these are the substance which helps in oxidation of other. इट मीन्स अदर सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में जो हेल्प कर रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अदर। फॉर दिस वी आर टेकिंग एग्जांपल लाइक कॉपर ऑक्साइड, व्हेन इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म कॉपर प्लस वाटर। देखो इस क्वेश्चन में चार टर्म्स पूछते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी हुई, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ,
हाइड्रोजन राइट साइड में क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H2O में। रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इट मींस कॉपर ऑक्साइड से फॉर्म हो रहा है कॉपर, ये है रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है जिसमें ऑक्सीजन आके ऐड हुई है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है हाइड्रोजन गैस। रिड्यूस सब्सटेंस पूछ रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है उसी का रिडक्शन हुआ है, सो इट इज द कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट थिंग पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, इट मींस खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में कौन सा होगा, कॉपर ऑक्साइड, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन छोड़ के, ऑक्सीजन छोड़ेगा तभी किसी दूसरे सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड। जो भी सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो आपके आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा आंसर आएगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। बिकॉज रिड्यूसिंग क्या है, जो किसी अदर के रिडक्शन में हेल्प करे, तो हाइड्रोजन गैस ने इससे ऑक्सीजन ले लिया तभी तो इसका रिडक्शन हुआ। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, जिसमें आपको एक रिएक्शन देंगे, आपको ऑक्सीडाइज रिड्यूस सब्सटेंस बताना है और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, रिड्यूसिंग जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगी, लेकिन एजेंट वर्ड आते ही अपोजिट वर्क हो गया, जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो आएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट में। नाउ वी आर टेकिंग लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, corrosion and rancidity. Corrosion, it is the slowly eating up of materials, slowly eating up of metals due to attack of atmospheric gases. Like ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S एक्सेट्रा। लाइक आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मॉइस्चर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दें तो कुछ टाइम के बाद में दे बिकम्स रस्टेड, उनके ऊपर रस्ट हो जाती है, जंग लग जाती है, तो वो प्रोसेस ही है कोरोजन। इट मीन्स मेटल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली ईटिंग अप, इट मीन्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। रीजन क्या है, उनके ऊपर वाटर और गैसेस के अटैक की वजह से। लाइक आयरन है, व्हेन इट रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन गैस देन इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड, दैट इज रस्ट, और ये रस्ट होगा ब्राउन कलर का कंपाउंड, जिसके थोड़े टाइम के बाद में वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो वो प्रोसेस है कोरोजन। इससे प्रिवेंट कैसे रखना है आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, देखो आयरन के आर्टिकल्स को अगर हम पेंट कर दें तब भी उसको रस्ट लगने से बचा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर दें, या थर्ड प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, आयरन की सरफेस पे दूसरे मेटल की सरफेस डिपॉजिट कर देंगे, जिससे दूसरा मेटल डिस्ट्रॉय होगा, आयरन के ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, तो वो प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे जिंक की लेयर डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रेंसिडिटी। देखो जो भी फूड मटेरियल्स जिनके अंदर ऑयल या फैट है, अगर वो ऑक्सीडेशन की वजह से स्पॉइल्ड हो रहे हैं तो वो प्रोसेस है रेंसिडिटी। द फैट और ऑयल प्रेजेंट इन फूड results into bad smell. This process is called rancidity.
फूड को रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे करना है। जो भी प्रिपेयर्ड फूड है उसको फ्रिज में रख दो, या उसमें एंटी प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस ऐड कर दो, या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ऐड कर दो। जितने भी चिप्स के पैकेट्स जो मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, लेज हैं, अंकल चिप्स हैं, ये पैकेट्स क्या होते हैं, उनके अंदर भी ऑयल प्रेजेंट है, बट वो काफी टाइम के बाद भी खराब नहीं होते। रीजन क्या है, अगर उन चिप्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिले तो वो रेंसिड हो जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, उन पैकेट्स के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके, इट मीन्स ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस उन फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करेगी और वो चिप्स के पैकेट्स इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होंगे। तो रेंसिडिटी के प्रिवेंशन मेथड्स हैं, बाय कीपिंग इन फ्रिज, सेकेंड इज बाय एडिंग सम प्रिजर्वेटिव, थर्ड इज बाय रिप्लेसिंग ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन गैस। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नाउ आपके लिए असाइनमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, a solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance and write its formula. Its second part, write the reaction of substance X named in above with water. Second question, why is the amount of gas collected is double of the amount collected in other in electrolysis of water? Name this gas. Third question, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? Last fourth question, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction. First, Na plus oxygen form Na2O. In second part, CuO, copper oxide, react with hydrogen gas and form copper plus water. Okay students, thank you so much.